This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Question number 261, Subhash Bhamre. Question number 261 by Dr. Subhash Ramrao Bhamre. Will the Minister of Social Justice and Empowerment be pleased to state A. Whether the government is implementing various centrally sponsored schemes of scholarship for scheduled caste SC students in Maharashtra? B. If so, the details thereof and the total funds granted and utilized for scholarship of SC students during each of the last 3 years by the state government of Maharashtra. And C. The funds contributed by the state government and the union government for scholarship of SC students and the number of SC students benefited in Maharashtra during the said period. Shri A. Narayan Swamy, Minister of State for Social Justice and Empowerment. माननीय मंत्री जी, Honorable Speaker, a statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर, अभी प्रश्नकाल, नो प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद नो सभापति महोदय, अभी प्रश्नकाल के अंदर नहीं, आपका प्रश्नकाल में आभार नहीं, व्यक्त करना चाहता हूं। प्रश्नकाल में नहीं, नो। सभापति जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस प्रश्नकाल के बाद, मुझे मेरी बात रखने प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद, आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज सिट डाउन, आफ्टर क्वेश्चन आवर, आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज सिट डाउन। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके तहत समाज के विकर सेक्शन के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई है। सरकार ने बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम इम्प्लीमेंट की है जिससे एससी स्टूडेंट बेनिफिट हो उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन हमने देखा है बहुत बार कि जो जेन्युइन एससी स्टूडेंट रहते हैं, खासकर रूरल एरिया में, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से उनको पता नहीं चल पाता और दे आर नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप्स। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सरकार ने कौन से कदम उठाए जिसके तहत स्कूल और कॉलेजेस पे अवेयरनेस प्रोग्राम लिए जाए, उनको इस स्कीम के बारे में बताया जाए जिससे वो बेनिफिट हो। ओके, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, क्या तरीका है? Sir, just I am hearing the question I am hearing, or honorable member is asking about what is the awareness actions and taken by the government of India. Before going to that, there was a scheme, scholarship scheme is there, pre-metric and post-metric scholarships are there, sir. Before 2021, the government of India gives only 10% of scholarship for the every state, sir. No states are giving properly scholarship for any student in all over the states, sir. But our Prime Minister made a special reformation in the scholarship, sir. Now we are giving scholarship to all the states with regarding 60-40 we have made it, sir. We have made a plan for 59 crores, 48 crores for the 5 years, sir. Now our government of India, we are able to give the 35,534 crores for 5 years, sir. We have got one portal in the, we have opened one portal, and so what happens, you know, in the duration of the pandemic and the 2 years, there was no proper portal updated, sir. Even though we have paid the 9,400 crores arrears to all the states, sir. But we have got
Even though at the same time, when we have not received any application from the state, what we made, from our department, we deputed so many officers, you go and visit the state, got the detailed reports from the state. That's why we are giving this year, we released 866 crores, sir. 14 lakh students are benefited this year, sir. Honorable member. Sir, my second question to Honorable Minister. Sir, what are the steps taken by government to streamline the process of application and disbursement to encourage the more students to avail the scholarship under the scheme? That's why I stated, sir, our officers, sir, visit the states. They have the meeting with the education department, social science department, and what the portal we have made it know, that through that portal, they can upload, sir. Every student can upload. We will have this advertisement in all the papers, sir. Sri N. Reddippa. Sir, currently financial assistance 18,000 rupees awarded to students every year to pursue any post-matriculation course, sir. I would like to know from the Honorable Minister, in the light of COVID pandemic, increased educational fees and living expenses, whether the government plans to increase the financial assistance from the next academic year. If yes, the details thereafter. Sir, it's a common process, common phenomena for all the states, sir. We are giving for the degree and postgraduate level professional courses 13,500 for the hostelers. We are for a day scholar being 7,000, sir. For the group 2 professional courses leading to the degree, diploma, certificates, we are giving 9,500, and for the day scholars 6,500, sir. Graduate, postgraduate, covered group 1 and those who are not covered in the group 1 and 2, we are giving 6,000, and day scholars we are giving 3,000, sir. For the group 4, all post-matriculations, it means non-degree courses, 4,000 and 2,500, sir. CTR Baluji. Sir, your number cut. Sir, the government of Tamil Nadu, under the sagacious leadership of Dr. M.K. Stalin, has launched a new scheme to extend 1,000 rupees per month. 1,000 rupees per month to all girl students who are going for pursuing university education. Like that, irrespective of the caste, creed, and all communities. Like that, will the government of India come forward to extend financial assistance through scholarship to underprivileged OBC students along with the SC, ST, and so on and so forth to pursue the professional studies? No, it's not like that. So many states have their own scholarship schemes, sir. In Karnataka, they are giving 1,550 rupees per month, sir. Even Andhra Pradesh, they have got some other schemes in the Andhra Pradesh, some schemes in the Tamil Nadu. But here are the common phenomena for all the states in the country, sir. What we have proposed, made it is, no, we have what I have stated just now, no. That is the common phenomena, common policy in the country, what we are giving, sir. Mr. K. Sureshji. Thank you, sir. While there are several scholarships and schemes to ensure the education of students of scheduled caste, there are no institutional arrangements to prevent their dropout from various institutions. And in this regard, I would like to ask, Honorable Speaker, through you, sir, whether the government has any data available on increased dropping out of SC students from various education institutions due to harassment and also delay of the scholarship and teachers abusing, forcing them leave to the course. Whether the government has further notice to delay cause the institutions processing scholarship application and dispersal of the same SC students and causing unnecessary hardship. Mani Mantriji. Thank you, sir. Sir, we have no such statistics from the government of India, sir. Question number 262. No, nobody will have such a type of statistics. It is their duty, the state government's duty to get all those statistics. Shakya. Question number 262 by Shri Dilip Saikia, Shri Ramesh Chandra Kaushik. Will the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying be pleased to state A. The total funds sanctioned and utilized under Blue Revolution Integrated Development and Management of Fisheries
during the current year state-wise, particularly in Haryana and northeastern states including Assam, and B. the details of fisheries centres established under this scheme in Assam and Haryana including Mangaldoy and Sonipat parliamentary constituencies during the last 2 years and the current year. Shri Parshottam Rupala, Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. उत्तर सभा पटल करें। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय सदस्य, प्रश्न महाराष्ट्र का संबंधित था, छात्रवृत्ति का संबंधित था, ड्रॉप आउट का विषय शिक्षा मंत्रालय में आता है। अगर आपकी बात वाजिब होती तो मैं मंत्री जी को निश्चित रूप से डायरेक्शन देता, पर विषय महाराष्ट्र तक सीमित था छात्रवृत्ति का, और मैं पूरा ध्यान रखता हूं, ऐसा नहीं है। आपका संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के जरिए 2024-25 तक भारत में फिश प्रोडक्शन का लक्ष्य 22 मिलियन मेट्रिक टन रखा गया है, और हमारे जो अभी तक जो उपलब्धि है वो 15 मिलियन मेट्रिक टन है। तो मैं अपने फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर के जरिए मैं जानना चाहता हूँ, ये जो हमारे बजट है 2015-16 से 2019-20 तक जो 2577.49 करोड़ हम लोगों ने रखा था, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। असम में, नॉर्थ ईस्ट में इस फिश प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपए दिया गया था। वहां से करीब 16 करोड़ 71 लाख का ही उनका खर्चा होने पाया है। क्या मंत्री जी, ये फिश प्रोडक्शन जो देश आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आगे बढ़ रहा है मछली उत्पादन में, इसके लिए कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम, केंद्रीय योजना खाली फिशरीज डेयरीज डेवलपमेंट के लिए सभी विभागों में एक मॉनिटरिंग सिस्टम की खड़ा करने के लिए कोई सोच रहा है क्या विचार? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो पूछा है कि आसाम में 80 करोड़ रुपए भारत सरकार की ओर से मत्स्य संपदा योजना में दिए गए हैं, उसमें से कितना खर्चा हुआ है वो फिगर भी है हमारे पास, मगर वो जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की कोई सिस्टम क्या है। हम रेगुलरली भारत सरकार की हमारे सचिव स्तर से राज्यों के साथ परामर्श करते हुए इन हमारे प्रोजेक्टों में राज्यों में क्या चल रहा है उनका डेटा भी लेते हैं, उनसे यूसी भी मांगते हैं, और उनका यूसी मिलने के बाद ही दूसरा हफ्ता उसको दे पाते हैं, इसलिए उनका मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से फिर से मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2022-23 वित्तीय वर्ष में 6,407.31 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, जो 44% इंक्रीज हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। इस जो हमारे अमाउंट हमने सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है, उसका 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो शेयर होना चाहिए अध्यक्ष जी, वो नॉर्थ ईस्ट का शेयर 5% से बिलो है। थोड़ा इसको क्या, जब हम 10% तो जनरल बजट में जो टोटल आउटले है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसे ही हम 10% से ऊपर देना चाहिए, और आसाम जैसे प्रदेश जहां बहुत संभावना है मछली उत्पादन में, उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे क्या आगे के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी की इस बात के साथ मैं सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जितना एलोकेशन होता है उसमें खर्चा कम होता है। वो उनके हिली एरिया की वजह से कुछ योजनाओं में कॉस्ट बढ़ जाती हैं, इससे उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से हम अध्ययन करवा रहे हैं। और ये जो योजना है मत्स्य संपदा योजना, उसमें अपर सीलिंग है ही नहीं, सो राज्य सरकार की ओर से और ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे तो उसको और ज्यादा रकम भी मंजूर करने की संभावनाएं हैं। रमेश चंद्र कौशिक। धन्यवाद स्पीकर महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। आज हरियाणा में मछली उत्पादकता दर राष्ट्रीय औसत के 3.5 मीट्रिक टन की तुलना में 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है,
जिसे पता चलता ही प्रदेश के किसानों का रुझान मत्स्य पालन की तरफ दिख रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आमदनी डबल करने का, आमदनी बढ़ाने का, उसमें ये बड़ा भारी योगदान दे सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में कितनी मछली यूनिटें चालू हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं, और बंद हो चुकी यूनिटों को पुनः चालू करने की दिशा में सरकार द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है, और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों में जागरूकता फैलाने के संबंध में कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के संबंधित जो माननीय सांसद जी ने सवाल पूछा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा आपके जरिए सर कि हरियाणा में अभी तक 159.99 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं मंजूर कर दी गई हैं। भारत सरकार की ओर से अपने हिस्से के 32 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए हैं। योजनाओं के नाम के बगैर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के कृषि मंत्री श्रीमान दलाल जी ने मुझे मिलकर ये बताया था कि वहां जो खारा पानी हो गया है, क्षार युक्त पानी हो गया है कुछ एरिया में, और उसी एरिया में क्षार युक्त पानी में मछली का प्रोडक्शन लेने का एक प्रयास जो हुआ, आप अनुमति दे तो एक किस्सा में सबकी जानकारी के लिए आपके विषय में शेयर करूंगा, 1 मिनट में ही करूंगा। वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां के धर्मेंद्र सिंह करके पिता जगजीत सिंह, वो किसान का नाम है, 2.5 एकड़ का लैंड था। उन्होंने 3 लाख रुपया लगा के स्टॉकिंग किया। वहां आंध्र प्रदेश की वेंचुरी पुडुचेरी से उन्होंने स्टॉक लिया। 4 महीना 17/4 को स्टॉकिंग किया, 26/8 को हार्वेस्ट कर लिया। 130 दिन के काम में उसको 11 टन की उपलब्धि हो गई। और ये काम करने से मुझे लग रहा है कि जो एरिया में फसल नहीं उग सकती है, उस एरिया में ये वैकल्पिक तौर से किसान अपनी आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा काम कर सकता है। श्रीमती काकोली दस्तीगार। Thank you, Honorable Sir. Through you, I would like to ask the Honorable Minister whether he is aware that the cow feed, जो गाय का भूसा होता है, उसका भाव बहुत बढ़ गया कोरोना काल के आगे से और अभी से। हफ्ता में one milch cow would consume 2,100 rupees worth of bhusa every week. Now that has come up to more than 4,500 rupees. So the farmers who are having the milch cows, they are finding it very difficult. Some of them are leaving the cows on the road without any food. और जो marginal farmers है, they are finding it very difficult. ये गाय को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इसका बहुत भाव बढ़ गया भूसा का। Is the government thinking of anything to subsidize the feed for the cow? भूसे के भाव को सरकार थोड़ी नियंत्रण करेगी। भूसे का भाव बढ़ने से दूध का भी भाव बढ़ेगा और बच्चों को बहुत तकलीफ होता है सर, दूध नहीं मिलने से। थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो आपका कंसर्न जो है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। छोटे और मझले डेयरी फार्मर्स को इस ऑर्डर की बढ़ती हुई कीमत से परेशानी हो रही है। इस सवाल से जो ताल्लुकात हैं वो फिशरीज के रिलेटेड सवाल था, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की दीर्घदृष्टि की वजह से फोडर के अंदर फोडर बनाने के लिए 50% की सब्सिडी वाली योजना अभी लागू है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से हम दे रहे हैं। आप किसानों को उसके लिए प्रेरित करें, उसमें जोड़ें और 50% की भारत सरकार की सब्सिडी का बेनिफिट लेते हुए वो फोडर बनाने के काम में लगेंगे। वो जितने ज्यादा फोडर में 2 चीजें होती हैं, अपना ग्रीन फोडर होता है और सूखा चारा होता है, और सूखा चारा और ग्रीन फोडर वो सीजनल होता है। उन दोनों को मिला के
उसका आचार जैसा बना के उसको लंबे अरसे तक संरक्षित भी किया जा सकता है और इसकी कॉस्ट भी कम की जा सकती है। उसका बेनिफिट लेने का प्रयास मैं सभी सांसदों को बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी योजना पशुपालकों के लिए आई है, उसका आप जानकारी भी ले, अवेयरनेस भी करें और छोटे किसानों के लिए उसका उपयोग करने में काम करें। राज्य सरकारों की ओर से उसकी जितनी भी दरखास्तें आएगी उसको मंजूर करने के लिए भारत सरकार के पास पूरा प्रावधान है। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, यह अचार खट्टा हो गया मीठा हुआ ये पता नहीं, तो लेकिन बंगाल की पहचान मछली से हुआ करते। जैसे केरल, वैसा बंगाल, केरल में मछली को कहता है मीन, बंगाल में मछली को कहता है माछ, बाकी सारी जगह मछली। तो इस जवाब में कहीं सर, और दूसरी बात यह है सर, ये जो नील क्रांति की बात हो रही है ना सर, ये नील क्रांति शुरू हुई थी हिंदुस्तान में 1985 से 1990 जमाने में 7 ईयर प्लान में, और हीरालाल चौधरी वो भी बंगाल के थे और अरुण कृष्णन, ये दोनों को नील क्रांति की फादर माना जाता। क्वेश्चन ही है सर, दो पहलू है सर। उस बंगाल का कोई नामो निशान नहीं है। इस जवाब में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कोई स्कीम नहीं है बंगाल की तरफ से कि चुवांडी मिले बंगाल को। मुझे आश्चर्य हो रहा है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जैसे कि बोट ओनर होते हैं, फिशरमैन होते हैं, फिश वेंडर होते हैं, उस तरह फिश जो वर्कर होते हैं, फिश वर्कर को आइडेंटिटी कार्ड देने का सोच सरकार के पास है या नहीं? फिश वर्कर को आइडेंटिटी कार्ड। सर, माननीय चौधरी साहब विपक्ष के नेता के तौर पे जब खड़े होते हैं तो हम बहुत ही गंभीरता से उनके सवाल की संज्ञान लेना चाहते हैं। उन्होंने हमारे जवाब को पढ़कर ये बोल दिए कि इसमें बंगाल का कोई स्थान नहीं है। आपको सवाल भी पढ़ना चाहिए सर। सवाल जो है वो सीमित है। जो जिन सदस्यों ने पूछा है उन्होंने हरियाणा सेंट्रिक सवाल पूछा है, उनका जवाब इसमें डिटेल से दिया है। बंगाल के रिलेटेड जो भी भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, मेरे डिपार्टमेंट की नहीं, भारत सरकार की सारी योजनाएं सभी प्रांतों के लिए होती हैं। बंगाल के लिए भी आप अलग से नोटिस देंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब हम विस्तार से आपको देंगे। श्री नितेश पटेल। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके थ्रू मंत्री श्री जी पूछना चाहता हूं कि जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड है, वैसे फिशर्समैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए क्रेडिट कार्ड है कि नहीं? यदि हाँ, तो ये फिशर्समैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए अभी तक कितने क्रेडिट कार्ड भारत देश में दिए गए? माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सांसद जिन्होंने पूछा है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पशुपालकों को और मछुआरों के लिए यदि सबसे बड़ी कोई योजना घोषित की है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड की है। जैसे किसानों को 3 लाख रुपये तक की अमाउंट केसीसी के जरिए मिलती हैं और उसमें भारत सरकार की ओर से उसको इंटरेस्ट में भी सहायता दी जाती है, ऐसे ही भारत सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए भी केसीसी अवेलेबल है और ऐसे ही फिशरमैनों के लिए भी केसीसी अवेलेबल है। और ये आरबीआई की ओर से पूरे राज्यों के सभी प्रदेशों को, सभी अधिकारियों को जिला स्तर तक हमने सेंसिटाइज किए हैं। मैं सांसद में अभी इस गरिमापूर्ण ग्रह के मेरे सभी साथियों को विनती करता हूं, क्योंकि ये पशुपालकों को और मछुआरों को बैंक के साथ जोड़ने का और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेने का और देने का ये प्रयास भारत सरकार की ओर से हो रहा है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी डिस्ट्रिक्ट बैंक के लीड बैंकों के साथ और डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के साथ मिलके उन साधारण आदमियों को ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने में सहयोग करेंगे। ये काम चालू है। स्टेट वाइज स्कीम वाइज ब्यौरा दिया गया, एक 30 स्टेट है सर। Sir, the global climatic changes
मेरी गलत फहमी होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं होता। अपने क्या है, गलत फहमी होगी तो रिकरेक्ट करेंगे। Sir, the global climatic changes have adversely affected the fishermen community of our country. I be done. I be done, ji. See, sir, the global climatic conditions have adversely affected the fishermen folk of our country. Sir, the rise in temperature and also the increase of salt content in the oceans have given rise to a new phenomenon called the fish famine. The traditional fish we used to consume like sardines are not available in the oceans and seas. So is there a study related to this? The Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI, CIFNet, these state-of-the-art institutions are in my constituency. Are we utilizing these central government institutes to make a scientific study, take a scientific approach, or declare any kind of packages for the fishermen community, whereby these traditional fish which we used to get in our oceans are retained and more economies boosted by that way? Sir, is there any kind of packages or any scientific studies done in this manner? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा और कंसर्न सवाल माननीय सदस्य श्री ने पूछा है कि अपने समुद्र में इसका दोहन हो जाने की वजह से और क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से मछलियों के प्रोडक्शन में बहुत ही कमी आ रही है। उसी के लिए जिसने आपने बताया, ऐसे ही हमने रिवर रेंचिंग के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस बार लिया है और रिवर रेंचिंग का पहली बार राज्य सरकारें करती थी, मगर भारत सरकार ने 11 करोड़ रुपए के प्रावधान से एनएफडी को हमने वो मैंडेट दिया है कि हमारी पूरी नदियां और कोस्टल में हम रिवर रेंचिंग करेंगे और वहां उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैनों के लिए वहां उनको जरूरी मात्रा में मछलियों उपलब्ध हो, उसके लिए भारत सरकार ने काम शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 263, CN Annadurai. Question number 263 by Shri C.N. Annadurai, Shri Dhanush M. Kumar. Will the Minister of Agriculture and Farmers' Welfare be pleased to state A. The details of the estimated demand and supply of seeds in the country, including Maharashtra and Tamil Nadu. B. Whether the government has reviewed the adequacy of research support for the development of seeds, and if so, the details thereof. C. Whether the government has launched any scheme to provide seeds at lower prices to farmers living below poverty line in the country, including Maharashtra and Tamil Nadu. If so, the details thereof. D. The number of farmers benefited from the scheme during the last 3 years. E. Whether the government has utilized the services of non-governmental organizations to provide seeds to farmers, and if so, the details of such organizations. And F. Whether the government has fixed any time period for these organizations to execute the task, and if so, details thereof. Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। Honorable Speaker, sir, it is the responsibility of government to provide and distribute quality seeds to the farmers. In this context, I would like to ask the Honorable Minister the quantum of financial assistance provided to Tamil Nadu for production and distribution of new seeds under various central schemes in the last 1 year. Sir, my second question is the step taken by the government to expand the seed distribution centers for providing improved varieties of seeds to the farmers in Tamil Nadu. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जैसा कि सीड से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और इसके अंदर भारत सरकार का ये आने वाले समय में किसानों की इनकम भी बढ़े और उच्च गुणवत्ता के बीज किसान को मिले और साथ ही उसके बाद में कंज्यूमर तक उच्च गुणवत्ता के बीज पहुंचे, और इस दृष्टि से सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं
और इसके लिए हमारे सीड बैंक और जैसा कि सर्टिफाइड सीड है, फाउंडर सीड है और जो सीड है उसको किसान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें वैसे ये सीधा राज्य का विषय है और राज्य को ही सीड है वो उनको सप्लाई करना होता है, लेकिन भारत सरकार डायरेक्ट नहीं उसको सपोर्ट करती है। और जिसमें इन्होंने तमिलनाडु का स्पेशल पूछा है, तो तमिलनाडु को विभिन्न योजनाओं के तहत, जैसा कि बीज ग्राम जो हमारा बीज ग्राम है उस योजना के तहत है, बीज अवसंरचना के लिए भी है, राष्ट्रीय बीज रिजर्व के लिए और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण के लिए हमने तमिलनाडु को 73.84 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में अवेलेबल करवाए। और इसके तहत हमारी कई योजनाएं चल रही है, जिसमें सबमिशन ऑन सीड एवं सप्लाई प्लांटिंग मटेरियल, जिसके अंदर सीड विलेज प्रोग्राम हमारा है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन वो भी इसके अंदर चलता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत दलहन और तिलहन के अंदर भी हम बीज का सब्सिडी के आधार पर उनको सीड अवेलेबल करवाते हैं। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो RKVY योजना है, उसके तहत भी राज्य से जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आते हैं उसके आधार पर योजना के माध्यम से हम देश भर के अंदर सभी राज्यों को सीड है उसकी अवेलेबिलिटी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को पूर्ण रूप से राज्यों का सपोर्ट करता है। Anush M. Kumar. Thank you, Speaker, sir. Sir, majority of the farmers in my constituency using old variety seeds for rice cultivation. However, Union government is not providing subsidy to seeds which are of variety more than 10 years old. I would like to ask the Honorable Minister whether the Union government will extend subsidy to all the variety seeds. Sir, at the same time, subsidy is given to farmers for procurement of seeds. However, most of the small farmers and below poverty line are not given subsidy in seeds. In this context, I would like to know from the Honorable Minister the steps taken to extend this facility to all farmers. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसी वैरायटियां हैं जो बहुत पुरानी वैरायटियां हैं और उनकी किसानों के वहाँ पर कुछ वैरायटियों की डिमांड है, कुछ वैरायटियां जिनकी डिमांड नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने जो बायोफोर्टिफाइड सीड है या जो हाई जिंक, आयरन, बोरॉन की जो मात्रा, उस दृष्टि से सरकार है वो फूड सिक्योरिटी को लेकर भी निश्चित रूप से प्रयास करके नए सीड जो ICR के द्वारा तैयार किए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, वो हाई यील्ड के भी हो और गुणवत्ता वाले बीज किसान तक पहुंचे। इस दृष्टि से सरकार का लगातार प्रयास चलता है। उसमें जो 10 साल से कम की वैरायटी है उसके अंदर सरकार सपोर्ट करती है। और इसके अंदर मैं ये भी कहना, दलहन और तिलहन के अंदर है उसमें 15 साल तक की अगर उससे कम की वैरायटी है तो उसमें सरकार सब्सिडी के माध्यम से सपोर्ट करती है। और इसके अतिरिक्त अगर राज्य को लगता है कि कोई स्पेशल ऐसी फसल है जो किसान वहाँ पर यूज लेता है और वो उनको आवश्यकता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक उनको ये चीज़ बतानी होगी। भारत सरकार के पास में अगर राज्य सरकार प्रपोजल भेजता है तो RKVY योजना के तहत हम उसमें 10 साल की बनिस्बत अगर उससे अधिक की वैरायटी है तो उसको भी परमिशन देने का प्रावधान रखा गया है। और इसमें अभी तक जो है नई वैरायटी के लिए हमारा ये है कि जिसमें 20% तक तो अभी भी यूज ले सकता है, लेकिन 20% से अधिक अगर आवश्यकता है तो फिर उसके लिए भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार RKVY योजना के तहत प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। श्री इम्तियाज जलील। आज देश का किसान हमारे कृषि मंत्री की तरफ देख रहा है। रशिया और यूक्रेन से पिछले साल 2 मिलियन टन ऑफ एमोनिया आया। 10 से 12% फर्टिलाइजर जो है वो रशिया और यूक्रेन से आता है। इस साल जो है फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन हुआ है इस देश के अंदर वो कम हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से ना तो हमें पोटैश और अमोनिया बराबर से आ रहा है और ना फर्टिलाइजर ये सप्लाई कर पा रहे हैं। अब ऐसे हालात के अंदर हम किसानों के जरिए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस देश के किसानों को ये आश्वासन दे कि प्राइस कंट्रोल भी रहेगा और फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, सीड्स हो, इसका सप्लाई भी रेगुलर रहेगा। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। आज ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने ये अपना ठिकरा आपके ऊपर भेज दिया है कि हमने केंद्र सरकार को बोल दिया है कि हमको फर्टिलाइजर सप्लाई करे करके। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। दूसरा एक अहम मुद्दा ये है सर कि कई सारी कंपनीज ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया है किसानों के लिए
कि अगर आपको एक फर्टिलाइजर का बैग लेना है तो दूसरा साथ में कोई एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और ये मैंडेटरी कर दिया गया है, और बेचारे किसानों को मंत्री नहीं है, ये कृषि मजबूरन ये लेना पड़ता है। तो इस ताल्लुक से कोई एक कानून लाए, हम ये पता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है फर्टिलाइजर के लिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब फर्टिलाइजर की और जिसमें डीएपी और यूरिया की रेट बढ़ रही थी, और बढ़कर जो 1200 रुपये का बैग था और उसमें 600 रुपये की सब्सिडी थी, आज उस बैग की रेट लगभग 4000 के आसपास 4200 रुपये की है, लेकिन 2600 रुपये सब्सिडी देकर आज भी किसान को, जो उस समय 1200 रुपये का बैग था, आज भी किसान को 1200 रुपये में बैग अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आज जितना एक बैग की जगह 3 बैग के बराबर, तो 2 बैग के बराबर सब्सिडी दे रही है, तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति कमिटमेंट है, और उसी की वजह से इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यवस्था की गई है, और भविष्य में भी किसान के साथ में किसी प्रकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कहीं से भी लाना होगा, हम किसानों को बराबर अवेलेबल करवाएंगे। आप सभी लोग संक्षिप्त में जवाब दे देना। श्रीमती सुप्रिया सुले। Thank you, sir. Sir, this is in the reply the Honorable Minister has said that there is extensive research going on seeds. आज जो क्लाइमेट चेंज के कारण हम सब देख रहे हैं, हमारे सबके निर्वाचन क्षेत्र में बारिश हो या टेम्परेचर चेंज में हो, इसलिए क्रॉप यील्ड में बहुत अंतर रहता है। और मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में एक केवीके है जिसको आपने ही फर्स्ट प्राइज देश में दिया है, और उसके साथ एक स्ट्रेस एबायोटिक आप ही का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सो आर देयर न्यू इनोवेशंस दैट यू वांट टू डू फॉर ट्रायल्स? व्हाट इज द गवर्नमेंट्स व्यू स्पेशली इन वेजिटेबल्स, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। तो आप रिसर्च के लिए वेजिटेबल्स, जैसे बीटी कॉटन में जब हुआ था तब लोगों को लग रहा था कि बीटी कॉटन अच्छा नहीं है, कार्सिनोजेनिक है, तो कई लोगों ने इनोवेशन किया और अच्छा चला। तो वेजिटेबल्स ग्रोथ के लिए और कुछ इनोवेशन और इसके ट्रायल्स करने के लिए इज द गवर्नमेंट ओपन फॉर न्यू ट्रायल्स इन सीड्स? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारे साइंटिस्टों ने इस विषय को लेकर कई नई वैरायटियां भी निकाली है, और जो उच्च गुणवत्ता वाली है, हाई यील्ड की भी है, और ऐसी वैरायटियां हैं जो पहले हमारे देश के अंदर नहीं थी। बाहर से आई वैरायटी को भी यहाँ पर वैरायटी को तैयार करके, और फल के अंदर भी और सब्जियों के अंदर भी तैयार की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि टोटल आज तक इसको लेकर जो 5800 वैरायटी देश के अंदर निकली है, जिसमें से 700 वैरायटी है, पिछले 7 साल के अंदर 1575 वैरायटी इसके अंदर निकाली गई है हमारे आईसीआर के द्वारा। और उसमें मुझे ये भी कहना है कि जिसमें मोटे अनाज की, और ये टोटल मिलाकर जो है 1500 है, और जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है वो है उसमें 288 वैरायटी है, जिसके अंदर फ्रूट क्रॉप भी है, उसकी भी वैरायटी है, मसाले की 18 वैरायटी निकाली है, और बीज मसाले की भी 29 है, और ट्यूबर क्रॉप है उसकी 46 है, और इस तरह से कुल मिलाकर जो 288 नई वैरायटी निकाली है। तो ये लगातार सतत प्रक्रिया है, और हम देश के किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 264 श्री रामदास तड़स। Question number 264 by Shri Ramdas C. Tadas. Will the Minister of Youth Affairs and Sports be pleased to state: A. Whether the government proposes to formulate any scheme for the welfare of Indian sportspersons of national and international level. B. If so, the details thereof along with the welfare schemes formulated for the purpose. And C. The total amount spent for the welfare schemes programs meant for sportspersons of national and international level during the last 3 years. Shri Nisit Pramanik, Minister of State for Youth Affairs and Sports. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये देश के प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सांसद क्रीड़ा महोत्सव, सभी सांसदों को एक विनती किया है कि सांसद क्रीड़ा महोत्सव से एक अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकती है। मैं स्वयं एक कुश्ती खिलाड़ी होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने कार्यकाल में जो वर्तमान सभी खिलाड़ियों का सुवर्ण काल प्रारंभ हुआ है, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूं
खेलो इंडिया के अंतर्गत ग्रामीण तथा छोटे शहरों के खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने हेतु और केंद्र सरकार की खेल संबंधी नीतियां और खेल योजना संबंधी आवश्यक जानकारी सभी खिलाड़ियों तक पहुंचने हेतु क्या केंद्र सरकार हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्ति करने का विचार करे, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की सभी खेल योजना की जानकारी जिला स्तर पर प्राप्त होने की व्यवस्था विकसित हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरा सदन को ये बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि कैसे भारत को खेल क्षेत्र में और प्रगति लिया जाए और जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, और इसके तहत भारत की खेल मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है कि किस तरह से उनका जो ये लक्ष्य है इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। और महोदय 2024 तक हम लोगों का ये लक्ष्य है कि पूरा देश में 1000 खेलो इंडिया जो सेंटर है ये स्थापित किया जाए, और अभी तक लगभग 400 जो है 478 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। और इसके अलावा भी महोदय बहुत सारा ऐसा जो है एकेडमीज है, अभी तक 247 जो एकेडमीज है इसको भी खेलो इंडिया के अंतर्गत लिया गया है। और इसमें से ज्यादातर महोदय जो है छोटा शहर और उसके साथ साथ जो रूरल एरिया से ग्रामीण क्षेत्र है भारत की, उसका जो खिलाड़ी है वो ही ज्यादातर जुड़ते हैं, जिसमें से माननीय सांसद महोदय की क्षेत्र में भी एक खेलो इंडिया सेंटर है जिसमें बॉक्सिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाते हैं। और महोदय उन्होंने माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न रखा कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नोडल ऑफिसर रखा जाएगा, ये नहीं। हम सभी को जैसे पता है कि खेल स्टेट मैटर्स है, अगर कोई नोडल ऑफिसर रखते हैं तो ये स्टेट के जरिए ही रख सकते हैं, लेकिन राज्य के साथ राज्य की खेल क्षेत्र की विकास के लिए केंद्र हमेशा, भारत सरकार हमेशा राज्य के साथ खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि छोटे शहरों से ग्रामीण भागों से खिलाड़ी आते हैं लेकिन उनको कोच नहीं रहता, घर की परिस्थिति बराबर नहीं रहती, तो जो शहरों में जो संस्था है, जैसे मेरे संसद क्षेत्र में एक एकलव्य संस्था है जिन्होंने एक लड़की को अंतर्राष्ट्रीय एकलव्य संस्था ने भेजा है धनुर्विद्या में, उनको स्वर्ण पदक भी मिला है। तो ऐसे ग्रामीण भाग से आने वाले जो खिलाड़ी है उनको अपन क्या मदद कर सकते हैं, और जो संस्था चलाती है उनको केंद्र सरकार से क्या मदद हो सकती है? महोदय, पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि खेल क्षेत्र के विकास के लिए जैसे उन्होंने बताया कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाएगा, और जिस तरह से ये आदरणीय प्रधानमंत्री एक मिशन की तरह लिया है कि पूरा भारत में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और इसलिए अभी तक महोदय लगभग 2397 जो राशि है इसका लागत से लगभग 289 नए जो स्कीम का शुरुआत किया गया है, और उसमें अभी तक लगभग 1000 करोड़ की राशि जो है ये आवंटित की जा चुकी है। और उसके साथ साथ महोदय बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसके जरिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जो खिलाड़ियों है उसका तरक्की के लिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे उनको जो जरूरी खेल के लिए जो जरूरी सामान होता है वो भी हम लोग उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत सारा स्कीम है। माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिकतम माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, और जिस तरीके की रुचि माननीय सदस्यों की खेल को लेकर है, खेल स्पर्धा को लेकर है, मैं अगले वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर इस पर मंत्री जी से चर्चा कर और व्यापक चर्चा करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राम कृपाल यादव। Question number 265 by Shri Ram Kripal Yadav, Shri Rajendra Agarwal. Will the Minister of Food Processing Industries be pleased to state A. The projects sanctioned and the financial outlay under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana PMKSY. B. The details of the number of mega and mini food parks, cold chain storage systems and food testing laboratories
established under the PMKSY in the states of Bihar, Rajasthan, Odisha, Uttar Pradesh and Maharashtra since the inception of the Yojana district-wise. C. Whether there is an increase in the conservation and processing capacity of the agricultural produce in the above said states due to the projects undertaken under PMKSY in 2021-2022. D. If so, the details thereof. And E. The number of direct and indirect jobs generated due to the projects undertaken thereunder in the above said states in 2021-22. Shri Pashupati Kumar Paras, Minister, Food Processing Industries. सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं सर, और बिहार में आज भी कृषि पर लोग आधारित हैं। 80% आबादी आज भी खेत पर निर्भरता है। उपज होती है, हर चीज की उपज होती है, कोई उद्योग धंधा नहीं है सर वहां पर, जिसके वजह से बिहार की स्थिति आज भी बहुत पीछे है। आपका सर, ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूं सर, पहले पीड़ा तो व्यक्त कर दूं अपनी। क्या बिहार की पीड़ा है सर? हमेशा आप सुनते होंगे विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को आगे ले जा सकें, विकसित कर सकें। यही तो आधार है जिसके लिए मैंने प्रश्न किया है आपके माध्यम से सर। पूछे प्रश्न आप। बस मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसानों की चिंता की और आज तक लगातार किसानों की चिंता करते हुए ऐसी योजनाओं को देश में लागू करने का काम किया है। पर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मंत्री जी का उत्तर आया है सर, वो भी बिहार से हैं, गरीब परिवार से हैं सर, गरीबी को देखा है बहुत करीब से, संतोषजनक नहीं है सर। मैं आपको बताऊं कि सर, ये जो प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न के आंसर में ये कहा गया है कि मेगा फूड विवरण दिया गया है कई राज्यों का, जिसमें बिहार है सर। बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 0, मिनी फूड पार्क 0, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला 0, एकीकृत शीत श्रृंखला मात्र 3। कई राज्यों का बहुत लंबा है सर। आपका मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न पर तो आ रहा हूं सर। तो आए तो इतनी मैं आ रहा हूं ना। माननीय सदस्य बैठे, आप बैठे, एक मिनट बैठे। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में भूमिका बनाने में आप 10 मिनट लगाएंगे, मंत्री जी 30 मिनट जवाब देंगे, तो और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का क्या होगा? भूमिका नहीं मानते आप, तो प्रश्न पूछे सीधा। सर, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में, कर्णिका ख में जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना कोई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, परंतु मांग पर आधारित है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि बिहार में कितना फूड मेगा पार्क, मिनी फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और खाद्य प्रयोगशाला की योजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए आई है, और कितनी योजना को आपने स्वीकृति देने की कृपा की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में कुल स्वीकृत परियोजना 10 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 2 है, एक खगड़िया में है और एक मुजफ्फरपुर में है। कोल्ड चेन 6 है, मिनी फूड पार्क 1 है, यूनिट 1 है। इसका कुल प्रोजेक्ट लागत 351 करोड़ रुपये है और स्वीकृत ग्रांट 110 करोड़ रुपये है। इनमें से पूर्ण परियोजना 4 है, कोल्ड चेन 3 यूनिट है। 2 मेगा फूड पार्क है, जिसमें खगड़िया कार्यरत है और मुजफ्फरपुर में अभी तुरंत स्वीकृति मिली है, वो अभी शुरुआत हुआ है। माननीय सदस्य। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहूंगा कि सर, जैसा कि आपने आंसर में बताया कि फूड पार्क खगड़िया स्वीकृत है, 2014 में स्वीकृति मिली है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, 8 साल हो गए। नंबर 1। नंबर 2, फूड पार्क गया
बेगूसराय सबकी चर्चा की, मुजफ्फरपुर की चर्चा की। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि साहब एक योजना स्वीकृति आपने दिया जिसमें 8 साल लगा, बाकी की जो योजना है वो कितने साल में पूरा होगा और होगा कि नहीं होगा, बिहार का क्या होगा? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी गई है और जहाँ तक इन्होंने कहा है मानसिक खगड़िया के बारे में, उसमें 85% काम हो चुका है। एक यूनिट उसमें कार्यरत भी है। मुजफ्फरपुर में अभी एक सप्ताह पहले ही स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार का है। रामकृपाल जी को ले जाइए। बिहार प्रदेश का आज दिवस है, स्टेट गवर्नमेंट का है और बिहार प्रदेश का दिवस है। बिहार संस्कृति आध्यात्म की एक बड़ी धरती है जिसने व्यापक रूप से कौशल दिया है, इसलिए बिहार कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। आज भी देश में बौद्धिक क्षमता से सबसे ज्यादा जवान कई है तो देश में बिहार के हैं। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय रामकृपाल जी की पीड़ा से मैं बिल्कुल सहमत हूं और उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल 2 मेगा मतलब एक भी मेगा फूड पार्क नहीं है। तो मेरा एक तो सवाल यही है कि कुछ वहां से निवेदन आए हुए हैं क्या जो स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक ये भी है कि जो बजट है वो अंडर उसका जो उपयोग है वो बहुत कम हुआ है। क्या उसका पूरी तरीके से उपयोग करते हुए इस दृष्टि से इस दिशा में बढ़ने की कोई योजना माननीय मंत्री जी की है? अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कुल स्वीकृत परियोजना 65 है, जिसमें कोल्ड चेन 25, मिनी फूड पार्क 4, यूनिट 22, BSL 5, लैब 9 है। इसका कुल प्रोजेक्ट लागत 1257 करोड़ रुपये है और स्वीकृत ग्रांट 348 करोड़ रुपये है। इनमें से पूर्ण परियोजना 43 है, कोल्ड चेन 17 है, मिनी फूड पार्क 2 है, यूनिट 13 है। मेगा फूड पार्क भारत सरकार के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है, इसलिए उसमें उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई मेगा फूड पार्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 274 भी क्लब किया जाता है। अनुभव मोहंती जी। Question number 274 by Shri Anubhav Mohanty. Will the Minister of Food Processing Industries be pleased to state A. The total number of farmers benefited under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana PMKSY during each of the last 4 years so far. B. The total number of direct-indirect employment generated under the PMKSY during the said period. And C. Whether the government has any proposal to improve the employability of the Yojana, and if so, the details thereof. Shri Pashupati Kumar Paras, Minister, Food Processing Industries. माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद सर। सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा सर, क्या ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, फंड ऑफ इंडिया से जो मिनी फूड पार्क्स है सर, इसको पार्शियली फंडिंग करने की व्यवस्था कर रहे हैं सरकार की तरफ से, या पूरी तरह से फंडिंग करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से? ये सर मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा सर। अगर ऐसा है तो सर उसकी डिटेल सर। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, क्या प्रश्न था? मैं सुना नहीं, क्या दोबारा एक बार बोलिए प्रश्न? जी। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जो मिनी फूड पार्क्स है उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ इंडिया से आप उसको पूरी तरह से फंड करने वाले हैं मिनी फूड पार्क्स बनाने के लिए, या पार्टली कोई परसेंट होगा जैसे स्टेट के साथ आप शेयर करके करना चाहते हैं? सो क्या व्यवस्था आपने रखा है? अगर कोई भी व्यवस्था हुआ है तो उसका डिटेल्स भी चाहिए मुझे। देखिए, आपके उड़ीसा में स्वीकृत परियोजना 12 है, मेगा फूड पार्क 2 है, कोल्ड चेन 4 है, यूनिट 2 है, जिसका कुल प्रोजेक्ट लागत 460 करोड़ रुपये है। मिनी फूड पार्क की सब्सिडी भारत सरकार देती है, नाबार्ड से फंडिंग होती है, और इसमें फूड परियोजना 8 है, मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 3 है, यूनिट 2 है। श्री हसन मसूदी जी।
दूसरी बात है सर, मेरा एक सेकंड सप्लीमेंट्री सर प्लीज सर वो ये है कि क्या केंद्र सरकार या मंत्रालय कोई व्यवस्था रखी है, कोई सोच रखे हैं कि आगे ओडिशा में, मतलब मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी केंद्रापड़ा में, वहां पर कोई मिनी फूड पार्क बनाने की योजना कोई रखे हैं? अगर है तो कब तक बनेगी? अगर नहीं है तो क्या आप मेरा रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसको इसी 17वीं लोकसभा के अंदर इसको करें? यदि राज्य सरकार से आवेदन आएगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। श्री हसनैन मसूदी जी। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब जम्मू कश्मीर में कोई 3 करोड़ मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, सेब, नाशपाती, गिलास और हर किस्म का। तो अभी तक कमर्शियल प्रोसेसिंग 5% से भी ज़्यादा नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था है फूड पार्क्स की या मिनी फूड पार्क्स की। तो मेरी ये गुजारिश होगी, तो हमारी एक और दिक्कत भी होती है क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है और कभी कभी सड़क बंद होती है NH44, तो वहीं का वहीं रह जाता है। फूड कंसनट्रेट बनाने की भी एक स्कोप है और जो प्रोसेसिंग की स्कोप है। क्या इस जो PMKSY के तहत क्या जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोई योजना है कि यहाँ पर भी फूड पार्क्स और जो कोल्ड चेन है उसका और कमर्शियल प्रोसेसिंग का उसमें बढ़ावा दिया जाए और उसके प्रयास किए जाए? नहीं है माननीय मंत्री जी, बाद में आवेदन जब आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 266 प्लीज, श्री जी रंजीत रेड्डी। Question number 266 by Dr. G. Ranjit Reddy, Srimati Kavita Malothu. Will the Minister of Panchayati Raj be pleased to state A. The details and the number of panchayats in the country state-wise. B. Whether the government has provided computers under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA to panchayats. C. If so, the details of panchayats that have been given computers and technical manpower, that is, computer literate persons in the state of Telangana district-wise. D. The details of requests received for sanction of computers and technical manpower from the government of Telangana during each of the last 5 years. And E. The steps taken by the ministry in this regard to provide computers and manpower to panchayats under RGSA. Shri Kapil Mureshwar Patil, Minister of State for Panchayati Raj. माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रख दिया है। श्री डॉक्टर के वीरास्वामी। Thank you very much, sir. Sir, there are 3 elected representatives in the country, sir. One are members of parliament, and the others are members of legislative assembly, and the third are people elected through the local bodies, sir. Fortunately, we have salaries for members of parliament and members of legislative assembly, whereas we do not have salaries for the elected representatives for the local body. This can cause a lot of hardship for the people who are elected, and probably it is unfair to expect the elected people from local bodies to serve for free. So can the government consider having a salary structure for people elected to local bodies also? It can be either partly by the center and partly by the state government, but if a provision can be made for that, I think it will benefit the performance of the local bodies much better. Thank you very much. सांसदों विधायकों का वेतन भी बंद कर दो। सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो वेतन देने का सवाल जो है वो राज्यों से संबंधित है। राज्य सरकार चाहे तो वेतन दे सकती है, केंद्र सरकार के पास वेतन देते हैं, अलाउंस देते हैं, वेतन थोड़ी बोलते हैं उसको मानधन देते हैं। हाँ, मानधन देते हैं। आप उसको तो क्लियर कर दो। मानधन देने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। नहीं कर रहे सांसद केंद्र सरकार का कोई प्रावधान नहीं है सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 267 निशिकांत दुबे। Question number 267 by Dr. Nishikant Dubey, Srimati Keshari Devi Patel. Will the Minister of Youth Affairs and Sports be pleased to state A. Whether a number of indigenous sports are being played in different states as per their culture and tradition, and if so, the details thereof. B. The details of steps being taken by the government to promote indigenous sports in the country, including Jharkhand and Uttar Pradesh. C. Whether the government proposes to conduct special training programs for the development and promotion of traditional sports. D. If so, whether any review evaluation has been done for development of sports at the grassroots level, and if so, the details thereof state UT-wise, including Jharkhand and Uttar Pradesh, including Prayagraj district. E.
the details of places where traditional sports competitions are being organized in the country. F. The sports competitions which are being proposed to be organized at Panchayat, district, state level to develop sportsmanship in the country, state UT wise. And G. The details of the financial and training assistance being provided by the government in such events. Shri Nisit Pramanik, Minister of State for Youth Affairs and Sports. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर माननीय सदस्य। स्पीकर महोदय, ये सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कार्य किया है और खासकर 4 जो स्वदेशी खेल हैं, मलखंभ, कलियापरकट्टू, गटका और ताइक्यू, इसको इंक्लूड किया है। लेकिन मेरा बेसिक सवाल केवल और केवल झारखंड के लिए है स्पीकर महोदय, कि झारखंड में 2 खेल, 2 ट्राइब्स वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संथाल, जो कि यहाँ सुनील सोरेन साहब सांसद हैं, और थॉमस हांसदा, और हो जो कि गीता कौड़ा जी यहाँ मौजूद हैं। उनके 2 खेल हैं कटी और सीकौर, और उसका कोई जवाब मैंने पूरे आंसर में देखा कि पूरा जवाब नहीं। ये बात सही है कि ये स्पोर्ट्स राज्य का विषय है, लेकिन आर्टिकल 275 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है स्पीकर महोदय, वो ये कहता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के जो जगह हैं वहां पूरा का पूरी जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार की होती है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये प्रश्न है कि कट्टी और सीकौर, जो कि संथाली आदिवासी और हो आदिवासी को बढ़ावा देने के लिए खेल है और जो देश के साथ उन आदिवासियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है, उसके लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है और राज्य के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं छोड़कर आर्टिकल 275 में वो क्या काम कर रही है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संसद जी ने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एक प्रश्न रखा है। निशिकांत जी बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं और प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है। मैं ये इतना हम लोगों के इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये प्रश्न को थोड़ा मैं आपके सामने मैं विस्तार में बोलना चाहूँगा कि ये जो सारे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है, गेम है, इसमें से अभी तक जो 4 गेम हैं, खेल हैं, जैसे मलखंभ, कलाईपट्टू, गटका और थंगटा, इन चारों का जो फेडरेशन है इसको मान्यता दिया गया है। और सारे जो स्टेट्स है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हो या फिर साउथ का हो, सारे स्टेट का अलग अलग जो है वो इंडिजिनस जो है खेल रहता है। हम लोग भी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, सभी लोग जो बचपन में जब हम लोगों का खेल कूद का शुरुआत होता है, वो भी कुछ ना कुछ जो हम लोगों का क्षेत्रीय खेल है, जो हम लोगों का इंडिजिनस खेल है, उसी के माध्यम से होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा सांसद महोदय भी है जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, चाहे वो गिल्ली डंडा हो या फिर चाहे वो और दूसरा क्षेत्रीय खेल हो, उसके साथ हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट रहता है। बहुत सारा ऐसा खेल होता है जो अपना सुरक्षा के लिए भी काम में आता है, और बहुत सारा ऐसा स्पोर्ट्स होता है जो हम लोगों का परंपरा और ऐतिह्य को भी दर्शाता है। माननीय संसद जी ने जो 2 खेल कट्टी और शिकर का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, महोदय, अगर जो इंडिजिनस गेम की जो पैरामीटर्स है ये अगर कंप्लीट करते हैं, इसको अगर पूरा करते हैं, तो जो भारत की खेल मंत्रालय के द्वारा इसका निश्चित रूप से उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। श्री निशिकांत दुबे जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, ये प्रश्न के उत्तर में जो सी का जवाब है कि मिनिस्ट्री जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से स्वदेशी खेल से लेकर अन्य खेल का बढ़ावा देती है। झारखंड की बड़ी स्थिति खराब है सर, वहाँ की जो स्टेट है वो स्पोर्ट्स के बारे में चिंतित ही नहीं है। और यदि अभी आपने देखा होगा कि महिला हॉकी की टीम की जो महिलाएं वहाँ खेलने के लिए गई, उनके पैर में बढ़िया से जूते भी नहीं थे, जिसको कि भारत सरकार ने मुहैया कराया। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये प्रश्न है सर कि देवघर में केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत बढ़िया स्टेडियम 25 करोड़ का हमने बनाया है, और पिछले 7 साल से मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम बराबर वहां गई है। क्या भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि वो केंद्र का पैसा है और केंद्र ने 25 करोड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पैसा दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई सेंटर
देवघर में जो कि वो स्टेडियम डिफंक्ट है उसको रिवाइव करके बनाने का कोई प्रस्ताव है, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी टीम जो गई है उसकी क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में यदि बताएंगे तो बढ़िया होगा। मिनिस्टर। माननीय सांसद जी को मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि सारे जो स्टेट्स है, स्टेट्स के हम लोगों ने स्टेट से पूरा साल भर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इसके लिए हम लोगों ने मांग किया था, और माननीय खेल मंत्री अनुराग जी ने भी हर एक स्टेट की जो खेल मंत्री है उनको पत्र प्रेरण किया था, और मैंने भी खुद हर एक राज्य की खेल मंत्री जी के साथ बात करने का प्रयास किया। और महोदय, जैसे कि बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से भी कोई प्रपोजल नहीं आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और पड़ोसी स्टेट होने का नाते झारखंड से भी कोई प्रस्ताव नहीं आता है, तो मैं समझता हूं कि पड़ोसियों का बेस्ट प्रैक्टिसेस लेना चाहिए। पास में ओडिशा है, उसको भी देखना चाहिए। और मैं निशिकांत जी को ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो कार्यकाल है उसमें अभी तक कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। अगर राज्य के माध्यम से कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ये निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये एश्योर करता हूं कि यथा समय पर उसका निर्णय लिया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.